Hello students, these are some practice question for you which is based on the type of relation whatever I had explained in the previous video. So now revise the type of relation here. Okay, so we will start here with the first question. Three relation R1, R2 and R3 are defined on the set A. Set A is this ABC as follows. So first relation is R1, R2, R3. These are three relation. Find whether each of R1, R2 and R3 is reflexive, symmetric and transitive. तो ये आपकी जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हैं या नहीं हैं, हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट रिलेशन. फर्स्ट रिलेशन R1 is AB, AC, BB, BC, CA, CB and CC. These are the element of the relation number 1. So for reflexive there should be the order pair of such type AA, BB, CC, because there are three elements and three elements should be relate itself, and these three relation you can get here. So that's why it is a reflexive relation. And for the second type, symmetric relation, you can see AB is present here, but the inverse of AB you cannot get here. ठीक है, so you can write it in this manner. फर्स्टली हम रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताते हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं. ए बी, नॉट ए बी, दिस इज ए बी बी, सी सी belongs to R1. ठीक है, फर्स्टली यू विल राइट दिस. आफ्टर दैट यू विल राइट अ स्टेटमेंट. Hence R1 is a reflexive relation. Okay. For symmetric, what you will do? You will write AB belongs to R1, but BA is not belongs to R1. Hence the relation is not symmetric. Okay. Now the third one is AB. ए भी नहीं लेते हैं हम यहाँ पे वो कंडीशन लेंगे जिसके थ्रू ट्रांजिटिव यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है. सो वी विल टेक बी सी है. बी सी बिलोंग्स टू R1 एंड वी हैव CA. so CA belongs to R1 but BA is not belongs to R1. हमने ये कंडीशन इसलिए ली है क्योंकि बाकी कंडीशन में तो ट्रांसिटिव हो रहा है, बट इस कंडीशन पे ट्रांसिटिव की कंडीशन हमारी प्रूफ नहीं हो रही है. ठीक है, तो हम अगर ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है तो मैं वो रिलेशन आपके सामने शो करूँगी जो शो करता है कि ट्रांसिटिव नहीं है. आफ्टर डेट यू कैन सी ए बी, बी सी. सो ए सी शुड बी हेयर और ए सी इज प्रेजेंट हेयर. ठीक है, तो इस सच टाइप रिलेशन यू कैन गेट हेयर, बट फॉर दिस relation is not verified, hence it is not a transitive relation. Okay, now the second is R2 AB BA AC CA. So you can see that today itself वाली condition हमें यहाँ नहीं मिल रही है, तो ए बी बी और सी सी की कंडीशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है. डेट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज दैट इज़ द कंपल्सरी सिचुएशन फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन विच इज़ नॉट प्रेजेंट हियर. एंड द सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन यू कैन सी ए बी बी ए सी सी ए. So inverse order pair are present here, which show that this relation is symmetric. And for transitive the same is here. AB is here, BA is here, but AA is not present here. ठीक है, so how can you write this? AB belongs to R2 and BA belongs to R2, but AA is not belongs to R2. Okay, so this is not transitive relation. So these are the
solution of the question number first. I hope you can understand it properly. कि how can you examine that the given relation is reflexive, symmetric and transitive. Okay, they ask, now go to the question number 2. There is show that the relation are on the set A 1 2 3 given by a relation. ये relation आपको given है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric नॉट ट्रांसिटिव. मतलब ये बता रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है कंडीशन शो हो रही है कि 1 2 3 आर एलिमेंट एंड यू कैन गेट 1 1 2 2 3 3 ऑर्डर पेयर हेयर विच शो दैट दिस इज अ रिफ्लेक्सिव. बट सिमेट्रिक क्यों नहीं है? देखिए ये 1 1 2 2 और 3 3 तो अपने आप ऑलरेडी इन्वर्स ऑर्डर पेयर शो कर देते हैं, लेकिन 1 2 के लिए हमें 2 1 चाहिए, 2 3 के लिए हमें 3 2 चाहिए और ये ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं मिल रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे 1 2 2 3 तो फिर 1 3 हमें चाहिए. ठीक है, इसका अल्टरनेट चाहिए जो हमें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, लिखने का तरीका आपको पता ही है, जैसे हमने ये सारे लिखे हैं. चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक बार आपको फिर से लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है. यहाँ पे मैंने इन दोनों एलिमेंट को लिया है 1 2 एंड 2 3. कोई भी एलिमेंट अगर हमें ट्रांसिटिव का कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा तो मीन्स वो ट्रांसिटिव रिलेशन को शो नहीं करेगा. ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये कंडीशन हमें मिल रही है जो शो कर रही है कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है. ओके, नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. शो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट A 1 2 3 गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव. ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने स्टार्टिंग पे शो किया है, आप चाहे तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में और इसको रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिमाइंड यू कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका प्रॉफिट ले सके और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. एंड वॉट एवर योर फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, इससे मुझे पता चले कि आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. ओके, सो हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने कम टू द पॉइंट. रिलेशन हमें दिया गया है 1 2 2 1. तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्स ऑर्डर पेयर आपको मिल रहे हैं, तो रिलेशन सिमेट्रिक है, ये वेरीफाई हो रहा है. बट ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे हमें ये कंडीशन चाहिए थी 1 1 2 2 3 3, जो कंडीशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए भी देखिए 1 2 है, 2 1 है, बट इसका अल्टरनेट 1 1 हमें यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. दिस शो दैट दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, सो ये 1 2 3 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव. हमें इसमें भी यही बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन है या नहीं है. तो 1 बाय 1 हम एक एक रिलेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट रिलेशन हमें शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए रिलेशन आर ऑन सेट ए, ये हमें 14 तक के एलिमेंट दे रहा है. ठीक है, मैं ये यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. सेट हमारा ए है, ये है 1 2 3 और ये हमारा 13 14 एलिमेंट तक हमारा शो कर रहा है ये सेट. ठीक है, डिफाइंड एज आर एक्स वाई इक्वल्स टू दिस. ये रिलेशन, इस रिलेशन के थ्रू हमारा ये सेट डिफाइन कर रहा है. तो रिलेशन क्या है हमारा शो कर रहा है यहाँ पे, एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर हैं वो किस रिलेशन से, जो एक्स और वाई हैं वो किस रिलेशन से रिलेट करते हैं. दीज आर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. तो देखिए अब इसका अगर हमें एलिमेंट चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो आप देखिए ये आपका 3 का मल्टीपल है और जब इससे हम y को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0 मिला है. मीन्स जो y की वैल्यू है वो भी 3 का मल्टीपल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जैसे हम 1 लिखते हैं तो 3 1 जा 3, यहाँ भी 3 होना चाहिए. ठीक है, तो 3 माइनस 3 शुड बी 0. तो एक ऑर्डर पेयर हमको मिल गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3. अब अगर 2 लिखते हैं तो 3 2 जा 6,
y की वैल्यू भी 6 होनी चाहिए, देन 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अगेन 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, 9 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो 3 एंड 9। ओके, नाउ 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू भी 12 होनी चाहिए, देन 0, तो 4 और 12 ये हमारे हो गए। अब देखो इसके बाद अगर हम 5 पे आते हैं, 3 5 जा 15, जो कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हमें रिलेशन में केवल यही एलिमेंट मिलेंगे, ये 4 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब इन 4 एलिमेंट पे हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन शो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जी 1 1 2 2 एट्सेट्रा 14 तक हमारे जो इटसेल्फ रिलेशन की कंडीशन है वो यहाँ वेरीफाई नहीं हो रही है, मीन्स इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नाउ द सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। 1 3 मिल रहा है लेकिन 3 1 नहीं है, 2 6 मिल रहा है लेकिन 6 2 नहीं है, 3 9 है लेकिन 9 3 नहीं है, 4 12 है लेकिन 12 4 नहीं है, मीन्स इनवर्स ऑर्डर की कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी। एंड द थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए अगर आपको यहाँ पे 1 3 मिल रहा है, देन 3 9 मिल रहा है, देखिए मैं इसको लिख के दिखाती हूँ, 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 बिलोंग्स टू R, तो ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए, 1 9 इम्प्लाई करना चाहिए, बट 1 और 9 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें इज़ नॉट बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि नहीं है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो द फर्स्ट रिलेशन विच शो इन द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, तीनों टाइप के रिलेशन को ये वेरीफाई नहीं करता है। चलिए अब हम सेकंड पे आते हैं। रिलेशन को पहले मैं नोट डाउन कर लेती हूँ ताकि आपके लिए इजी गोइंग हो जाए। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये जो एन है ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, यू नो वेरी वेल, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। डिफाइंड एज, ये डेफिनीशन है जिसके थ्रू रिलेशन जो है वो रिलेट कर रहा है। सो रिलेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी हमें डेफिनेशन दी गई है रिलेशन की, डैट इज़ एक्स वाई such that y equals to x plus 5, y equals to x plus 5 and x इज़ लेस देन 4, मतलब जो x की वैल्यू है वो 4 से लेस होनी चाहिए। तो अब आपका ये नेचुरल सेट है और x की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए, मीन्स x की वैल्यू 1 2 3 यही 3 वैल्यू हो रही हैं, और वो वैल्यू यहाँ पर पुट करने पे जो भी y की वैल्यू आएगी वो उस तरह से हमारे रिलेशन के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाती है, x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 7 मिल जाती है, और अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 8 मिल जाती है, एंड दीज आर द लेस देन 4, जो हमें इसकी कंडीशन को वेरीफाई करता है। तो दीज आर द 3 एलिमेंट विच इज़ डिफाइन द रिलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपको ये कंडीशन जो है कहीं भी 1 1 2 2 और एट्सेट्रा 14 तक आपको कंडीशन नहीं दे रही है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर देखें सिमेट्रिक की कंडीशन तो 1 6 है, 6 1 नहीं है, 2 7 है, 7 2 नहीं है, 3 8 है, 8 3 नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो शो द सिमेट्रिक रिलेशन, वो भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 6 यहाँ पर है, लेकिन कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जहाँ पे 6 आपका फर्स्ट एलिमेंट हो, मतलब जैसे 6 2 6 7 वॉटेवर, इस तरह की कंडीशन नहीं मिल रही है, और ना ही यहाँ पे 2 7 और 3 8 के लिए ये कंडीशन मिल रही है, तो दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं थर्ड रिलेशन पे। थर्ड रिलेशन हमारा है रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट ए हमारा है 1 से लेके 6 तक, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे y इज़ डिविजिबल बाई x, सॉरी, तो y x से डिविजिबल है, मैं रिलेशन को यहाँ पे शो कर रही हूँ,
देखिए यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, क्योंकि ये हमें x और y के फॉर्म में इस तरह से दिया गया है कि y इज़ डिविजिबल बाय x, तो अगर x और y दोनों ही इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे हम इक्वल की कंडीशन नहीं ले सकते हैं। सपोज़ वन को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डैट विल बी डिविजिबल, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे हम x की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो बिलोंग करता है सेट R को। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके सेट को लेते हैं, अगर हम ए सेट के इसके एलिमेंट्स को लेते हैं, तो x और y के एलिमेंट हमारे जब भी हम ए क्रॉस ए करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं 1 1 2 2 3 3 की कंडीशन मिलेगी जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर को शो करता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हमें इक्वल मिल जाएंगे यहाँ पे, जो हमारे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक रिलेशन पे आ जाते हैं। तो देखिए 1 और 6 का अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर हम 1 6 को ले रहे हैं तो 1 6 को डिवाइड करता है, लेकिन अगर हम 6 1 को लेंगे, या हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 6 को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन 6 1 को डिवाइड करेगा, 1/6 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगा। तो दीज आर नॉट इक्वल, है ना। तो ये कंडीशन जो है सिमेट्रिक कंडीशन को शो नहीं करी है। इसी तरह से जैसे 4 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 5 4 को डिवाइड नहीं करेगा, या 2 6 को डिवाइड नहीं करेगा लेकिन 6 को 2 डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली। तो मतलब हमें इन्वर्स ऑर्डर पेयर नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे, तो डेट्स वाई ये सिमेट्रिक की कंडीशन को शो नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स 2 6 जो हैं वो तो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, सॉरी इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, बट 6 2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर के लिए कंडीशन देखो क्या है यहाँ पे कि y इज़ डिविजिबल बाय 2। हाँ, तो हमारी ये बिलोंग्स कर रही है, y हमारा 6 है तो 6 हमारे यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, 2 6 बिलोंग्स टू r। ठीक है, 6 जो है 2 को 2 से डिवाइड हो रहा है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें 6 2 की, तो 2 हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा रिलेशन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि हमें इन्वर्स ऑर्डर पेयर नहीं मिल पा रहे हैं, हैंस दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सो द थर्ड इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जो कंडीशन आपको यहाँ पे मिलती है वो आपकी कंडीशन क्या होती है, ऐसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी जो है वो है ट्रांजिटिव एलिमेंट की। अब इसमें आपको कई सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 6 तक के एलिमेंट हैं, और आपको ये कंडीशन भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है फोर्थ वाला कि रिलेशन आर सी, रिलेशन आर ऑन द सेट जेड, यहाँ पे जेड दिया गया है, जेड ऑफ ऑल इंटीजर, जेड आपका कोई भी इंटीजर का सेट है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई आपका कोई ना कोई इंटीजर है। तो अब ये फोर्थ वाले के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो पहले मैं रिलेशन लिख लेती हूँ। तो रिलेशन है आपका आर एक्स वाई, और एक्स वाई किस तरह से रिलेट करते हैं, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्स वाई की, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स माइनस वाई आपका क्या होगा, ये अगर सपोज़ ये कोई भी हमारा एलिमेंट है, मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकती हूँ, सपोज़ मैंने p ले लिया है, तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर p है तो रिज़ल्ट भी एक इंटीजर ही होगा। और अगर मैं इसको वाई जेड करूँ, मैंने थर्ड एक कोई दूसरा ले लिया है एलिमेंट, या हम ये कहें कि इंटीजर, तो वाई जेड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये भी आपका इंटीजर है, तो ये जेड का पार्ट ही है, बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग करते हैं आर को, तो ये भी कंडीशन करेंगे वाई माइनस जेड इक्वल्स टू ये एक इंटीजर, क्यों, ये एक इंटीजर को ही शो करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड कर लूँ, एक्स माइनस वाई
प्लस वाई माइनस जेड। अगर मैं इन्हें ऐड कर लूँ तो देखिए जो एडिशन होता है इंटीज़र का वो भी एक इंटीज़र ही देता है, रिजल्ट इंटीज़र ही होता है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर मिलेगा वो x माइनस जेड मिलेगा, जो एक इंटीज़र को शो करता है। ये इक्वल्स टू में अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे ये रिलेशन में ही दे रखा है कि इज़ एन इंटीज़र। ठीक है, तो ये एक इंटीज़र है, ये एक इंटीज़र है, इनका सम भी एक इंटीज़र होगा और सम के बाद जो रिजल्ट मिला है वो भी एक इंटीज़र होगा। डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि एक्स जेड भी हमारा क्या करता है, रिलेशन आर को बिलोंग करता है। एंड डेट्स वाई दिस इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपको बता दिया कि जितने भी x माइनस यहाँ पे नहीं सॉरी रिफ्लेक्सिव आपको नहीं बताया मैंने, ट्रांजिटिव आपको पहले बता दिया। चलिए मैं रिफ्लेक्सिव अभी बताती हूँ। ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डेट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर की कंडीशन वेरीफाई हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन की, तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में अगर मेरा x माइनस वाई पी आ रहा है, कोई भी हमारा ये एक इंटीज़र है, और y माइनस जेड अगर हम ले लें तो ये हमारा माइनस पी आएगा, ये भी हमारा एक इंटीज़र है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो ये सारे ही इंटीज़र के पार्ट होते हैं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ये कंडीशन दे रहा है, और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर ये भी हमारे इंटीज़र की ही कंडीशन दे रहा है, मतलब दोनों ही हमारे इंटीज़र को रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो डेट्स वाई इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, ये सिमेट्रिक रिलेशन को कर रहे हैं। मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाती हूँ आपको, शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, हैंस एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीज़र। ठीक है, और अगर मैं इसका रिवर्स लूँ, क्योंकि जो हमारी सिमेट्री के कंडीशन के लिए उसके लिए रिवर्स हमारे होना ज़रूरी है रिलेशन में। अगर ये बिलोंग करते हैं आर को तो हमें y माइनस एक्स मिलेगा। मान लीजिए ये 2 माइनस 1 है तो 1 मिलेगा, और अगर ये 1 माइनस 2 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। -1 इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीज़र। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो एन इंटीज़र। ठीक है, हैंस दिस रिलेशन इज़ एन सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा ओके, हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो अगर हम किसी भी इंटीज़र को हम किसी इंटीज़र से माइनस करते हैं हमें ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो ज़ीरो भी क्या है, एक इंटीज़र ही है। तो जो अगर हमारे ऑर्डर पेयर आते हैं सेम वाले जो ऑर्डर पेयर आते हैं जहाँ पे एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट करता है, उस तरह की कंडीशन जो हमें रिफ्लेक्सिव में मिलती है वो यहाँ पे वेरीफाई होती है, क्योंकि उस कंडीशन में हमें यहाँ पे ज़ीरो नहीं मिलेगा, और ज़ीरो इज़ ऑलरेडी एन इंटीज़र। तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ये हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट है ये तीनों रिलेशन को शो करता है। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैं प्लीज टर्न द पेज। ओके, so now I will explain you question number 5. Show that the relation R on R defined as R equals to this. तो जो रिलेशन है मैं पहले उसे नोट डाउन करूँगी ताकि मैं आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकूँ। R equals to AB such that A is less than equals to B। ये हमारा एक रिलेशन है। अब कह रहे हैं इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमें जो कंडीशन मिल रही है a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b, ये कंडीशन क्या शो करती है कि या तो a की वैल्यू b से लेस देन है या फिर b की इक्वल है। अगर a की वैल्यू b की इक्वल हो जाती है मीन्स हमें यहाँ पे जो कंडीशन मिलेगी वो ए बी इस तरह की कंडीशन या वॉट एवर एलिमेंट आ गया, हमें जो भी एलिमेंट है उसकी कंडीशन हमें मिलेगी। और ये कंडीशन क्या बताती है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये तो प्रूफ हो गया। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए, अगर सपोज ए बी बिलोंग करता है हमारा आर को, ठीक है, मीन्स ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, और बी सी बिलोंग करता है हमारा आर को, मीन्स बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। अब देखो ए क्या है, बी से लेस देन है, और बी क्या है, सी से लेस देन है।
मीन्स ए सी से भी लेस देन होगा, यस और नो। और अगर हम इक्वल्स टू की कंडीशन लगाएं, अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए भी सी के इक्वल होगा। मीन्स अल्टरनेटिव कंडीशन जो यहाँ पे है वो वेरीफाई हो रही है, ए सी बिलोंग्स टू आर, ये जो ये है ये इम्प्लाई कर रहा है। तो डेट्स वाई ये ट्रांजिटिव भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन को भी शो करता है। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इसको शो करने के लिए देखिए, अगर सपोज 1 इज़ लेस देन 2 ये कंडीशन हमारी है, तो क्या हमारी ये कंडीशन मिल सकती है? नहीं मिल सकती है ना, ये कंडीशन नहीं मिल सकती है। 1 इज़ लेस देन 2 इज इट राइट, बट इसका जो इन्वर्स है 2 इज़ लेस देन 1 डैट इज़ नॉट राइट। मीन्स आपको 1 2 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 1 ये नहीं पॉसिबल है इन ईच केस, ठीक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रही है, बिकॉज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन बी, ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज लेस देन ए, अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है। अगर इक्वल्स टू का केस है तो वहाँ पे तो आपको ये मिल जाएगा रिफ्लेक्सिव, लेकिन अगर लेस देन की हम कंडीशन देखें तो वहाँ पे सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो सिमेट्रिक रिलेशन को ये शो नहीं करता है। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस हियर and I hope you are able to solve this question. If you have any problem, please tell me in the comment section. I will solve your problem definitely. Okay, so please like, subscribe my channel and give the comment also.